ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ خدا وحدہ لا شریک کے فضل و کرم اور احسان سے ماہ شوال المکرم کے بعد ماہ ذی القعدہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد آخری مہینہ جو ذی الحجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں بھی برکت عطا کرے اور اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ ہر لمحہ، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر ساعت بابرکت ہے اگر اللہ کے ذکر اور اس کے رسول کے اطاعت میں گزر رہا ہے، ورنہ کوئی مکہ جا کر کے بھی برکت نہیں لا سکتا ہے۔ برکت کی اصل وجہ ہے ذکر الہی، اطاعت رسول، حب مصطفیٰ، صحابہ اہل بیت کی اطاعت، اپنی روش بزرگان دین کے حوالے سے گزارنا۔ اگر انسان سنڈے کو بھی موجود ہے تو وہ اتوار بھی اس کے لیے قابل اعتبار ہے اور بہت ہی باعث برکت اور باعث نجات ہے۔ یہ وہ پہلو ہے کہ ہم سب کو سمجھنا ہوگا۔ میڈیائی سسٹم کو دیکھ کر، سوشل میڈیا کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جنت بھی اب میڈیا پر ہی بانٹا جائے گا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آج کیڑے مکوڑے کی طرح لوگ مفتی بنے نظر آتے ہیں۔ ذرا سا بھی علم ہو گیا پٹ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ہاں، میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی کہ نظریاتی اختلافات اپنی جگہ پر ہے، لیکن مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون استاذ کے مرتبے میں ہے، کون پیر کے مرتبے میں، یہ سب دیکھنا چاہیے۔ لیکن نہیں، ہمارے پیر کے خلاف اگر کسی نے بول دیا تو بس آپ جہنم میں چلے گئے۔ یہ آج ایک دم ٹرینڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر، بڑی تکلیف کی بات ہے۔ یاد ہے آپ کو کہ میں نے بہت پہلے ہی کہا تھا، یہ میں آج اس لیے بول رہا ہوں کہ آنے والے جمعرات کو محسن دکن، قطب دکن، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک اور ان کی مناسبت سے، مناسبت کیا، ان کی برکت کے تحت ہم جیتے ہیں۔ پورے دکن میں کوئی ایسا ولی نہیں ہے جن پر ان کا احسان نہیں ہو۔ امت کی کیا بات ہے، کیونکہ وہ قطب دکن ہے۔ دکن کا ہر ولی ان سے فیض پاتا ہے، عام آدمی کی تو بات ہی چھوڑی ہے، وہ قطب دکن ہے۔ جہاں کا جو قطب ہوتا ہے اس کے ماتحت رہنے والا ہر نیکوکار اس سے فیض لیتا ہے، پھر وہ بانٹتا ہے اپنوں میں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر پیر ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی پیر ضرور ہوتا ہے۔ لیکن آپ کیا ہے، اپنے پیر کو بس ولی ماننا ایک دم آپ کے لیے ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ ولی کے جو شرائط ہیں وہ ایک الگ ہیں، پیر کے جو شرائط ہیں وہ الگ ہیں۔ پیر کے 4 شرط ہیں۔ پیر کے جو شرائط ہیں، سب سے پہلی شرط ہے سنی صحیح العقیدہ ہونا۔ سب سے پہلی شرط ہے، یہ پہلی شرط ہے، سنی صحیح العقیدہ ہونا۔ عقیدہ اگر گڑبڑا گیا تو وہ پیر بن نہیں سکتا۔ اب دوسری شرط ہے اتنا علم رکھتا ہو کہ مرید کو حلال حرام کا درس دے سکے۔ کہ آپ سے ہم نے پوچھا حضور یہ حلال ہے یا حرام، تو آپ کہیں کیا ہے کہ نہیں معلوم، تو وہ پیر بننے کے قابل نہیں ہے۔
पीर के लिए, क्योंकि मुर्शिद बोलते हैं ना उसको, आप लोग मुर्शिद बोलते, वो मुर्शिद नहीं है, मुर्शिद है। हाँ, मुर्शिद, मुर्शिद बोले तो रुश्दो हिदायत करने वाले, सही रास्ता बताने वाले, इरशाद से है, बोलते हैं इरशाद, हिदायत का रास्ता बताने वाले। अब आपने हलाल की हिदायत पूछी तो बताना ना उन्हें कि ये हलाल है या हराम। लेकिन आज के पीर क्या है, अरे मैं बोल रहा हूं ना खा लो, मैं कैसे बोल सकते आप, ये मैं खुद रसूल पाक के ताबे है, शरीयत के ताबे है, शरीयत से ऊपर कोई नहीं, सबसे ऊपर शरीयत। हर चीज आपको शरीयत से हासिल करना है, आपसे शरीयत हासिल नहीं होगी। शरीयत सबसे ऊपर है और शरीयत में सबसे आला मकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके बाद सहाबे किराम, अहले बैत अथार, ताबईन का, तबे ताबईन का, ये सिलसिला व सिलसिला। लेकिन आज आपके पास क्या पैमाना है, आपका पीर दी एंड, चैप्टर क्लोज, बाकी जो भी जाए, मैं तकद्दुस का मकाम है इसलिए आगे का जुमला नहीं बोलूंगा, बाकी सब जाए कहां पता नहीं। ऐसा ना करना। मैं खुद एक पीर हूं, लेकिन कभी भी मुरीद को वो दर्श नहीं कि बस मुझे ही दी एंड, नहीं। आपने मुज्तमे शराइत पीर का दामन थामा है। पहली शर्त सुन्नी सही अकीदा होना, दूसरी शर्त इतना इल्म रखता हो कि हलाल और हराम में तमीज कर सके कि हलाल क्या है, हराम क्या है। तीसरी शर्त है, ध्यान दीजिएगा, फासिक मौलिन ना हो। अब जा रहे थे, पीर साहब को देख रहे हैं, खड़े होकर पानी पी रहे हैं, किसी भी होटल में बैठ करके खा रहे हैं, तो उनके होंठ से निकलने वाली आयत में बरकत कहां से होगी? फासिक मौलिन ना हो, खुल्लम खुल्ला फिस्क न करता। और चौथी शर्त यह है, ये बड़ी शर्त ध्यान रखेगा आज के हिसाब से, ख्वाजा बंदा नवाज के हम एहसान तले हैं, इसलिए जरूरी है ये जुमला। और इत्तिहाद उम्मत हबीब का जो चैप्टर है, ये 5वां पाठ है आज, मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमला बोल रहा हूं। चौथी और आखिरी शर्त यह है कि उनका सिलसिला बस सिलसिला नबी तक पहुंचता हो। ये जुमला बोलकर आपने सुभान अल्लाह तो कह दिया, लेकिन ये समझे नहीं। जुमला मतलब यह है कि कोई पीर का बेटा पीर हो जरूरी नहीं है, पीर के बेटे को भी खिलाफत और शजरा मिला हो और वो शजरा नबी तक पहुंचता। अगर हम पीर हैं और हमारा बेटा आलिम नहीं, हमारा बेटा मुत्तकी नहीं, हमारा बेटा सुन्नी सही अकीदा नहीं, हमारा बेटा मुज्तमे शराइत नहीं, तो वो पीर नहीं हो सकता। और अगर है भी लेकिन उसे खिलाफत नहीं है, तब भी पीर नहीं हो सकता, क्योंकि फैज के लिए खिलाफत शर्त है। ये तस्बीह के दाने की तरह है। अब एक दाना वहां पर रखा हो, उसको तस्बीह बोलेंगे? ये सिलसिला बसिलसिला। इसीलिए हम हजरत अमीर मुआविया को मानते हैं, यजीद को नहीं मानते हैं। आप इस बात को समझिए, क्यों? अहलियत नहीं है इनके। बड़ा बाप का है जरूर, लेकिन बेटा अहलियत नहीं रखता। मुसलमानों, इस बात को समझो। एक तो ये पीर की शर्तें हुई, तो आप पीर में वलायत मत तलाशिए, पीर में शर्तें तलाशिए। जैसे नमाज के लिए तवाफ का अकीदा मत पेश कीजिए, हज के लिए अरफात का मसला मत बयान कीजिए, नमाज के लिए वजू का मसला बताइए, वजू में सुन्नतें वाजिब क्या है ये बताइए। ऐसे ही पीर के लिए वलायत की बात क्यों कर रहे हैं? पीर की जो शर्तें हैं 4, वो देखिए आप। ये 4 शर्तें जिनके अंदर है, आप बैअत उनसे हो जाएं, मैदान महशर में वो आपकी रहबरी करेंगे इंशाअल्लाह। ये है, हर वली पीर है, लेकिन हर पीर के लिए वली होना जरूरी नहीं। ये जरूरी भी नहीं है, तो अब कई को जबरदस्ती आप, ये हुलू है, दीन में मुबालगा है, ऐसा मत कीजिए। और एक और बात, आप हो या आपके पीर साहब, दोनों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसा नहीं है कि आपके पीर का कलमा अलग है। पीर का कलमा अलग तो नहीं है ना। जो पीर हैं आपके, जिनसे आप बैत हुए हैं, और बैत का जिक्र जो है ये कुरानी जिक्र है, ये भी जरा सस्पेंस दूर कर लें आप। सूरह फतह की आयत नंबर 12 में, फिर आकर के जाकर के 13-14 में देखेंगे। इब्तिदाई दूसरे पेज में आप देखें तो आपको तीसरे पेज में ये बात मिलेगी
कि बैत का जिक्र कुरान में है। बैत ये कुरान का लफ्ज है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनक, अल्लाह ताला उन मोमिनों से राजी है जो ए हबीब आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं। तो बैत का जो लफ्ज है ये कोई बिदअत का लफ्ज नहीं है, ये बात भी ध्यान में रखिए। और नौजवान लोग पता नहीं गुस्से में तकरीर सुनते हैं, जो लोग बैत वगैरह के अकीदा नहीं रखते हैं वो गुस्से में तकरीर। अच्छा, फिर ये कि पीर से ज्यादा मानते सऊदी अरब को, और सऊदी में ये नहीं होता। अरे जब नहीं होता और तुम्हारे नजदीक पीर साहब को ना मानने का अकीदा है तो फिर लाल रुमाल वाले को क्या मान रहे हैं आप? वो भी तो अल्लाह रसूल नहीं है ना, डायरेक्ट मानो ना अल्लाह रसूल को। इसलिए नौजवानों ये बात जरूर ध्यान में रखना, ये मिसलीड हो रहे हो आप। बैत का जो लफ्ज है, बैत जो किसी पीर, चार शर्त के साथ जो पीर साहब है उनके हाथ पे हाथ इसलिए देते हैं ताकि आपके ईमान की श्योरिटी हो जाए। कलमा तो बहुत लोग पढ़े, कुरान कहता है मिनन नास मन यक़ूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान का दावा कहते हैं, आई एम वेरी वेरी मुस्लिम, मैं मोमिन हूं, मैं आखिरत पर ईमान रखता हूं। अल्लाह कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, मगर वो मोमिन नहीं है। अब आपके पास दलील क्या है? देखिए, कह रहे हैं कि मैं मोमिन हूं, तो कहना काफी नहीं है, उसके लिए दलील यही मुज्तमिउ शराइत पीर कहेंगे मौला मैं कह रहा हूं ये मोमिन है, तो फिर आपका ईमान मोतबर होगा। तो ये है असल गवाही का उन्वान। और पीरी मुरीदी ये दुनियावी चीज नहीं है, ये आखिरत की चीज है, ये भी याद रखिएगा। मेहनत कीजिए आप दुनिया में, कसब कीजिए, रिस्क तलाशिए। आप पीर का दामन थाम लिए और वो खजाना निकालने के लिए आप उनके पास बैठे रहिए, वैसा नहीं है। पीर इसलिए बने हैं ताकि उनके मिशन को मानिए, उनके तरीके को मानिए, उनके मसलक पे चलिए, उनका जो इत्तिबाए रिसालत है उनको फॉलो कीजिए, जो शरीयत में स्ट्रांगनेस है उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ये है असल। और इन सब चीजों का ताल्लुक आखिरत से है, जो दुनिया के एतबार से नहीं। ये बात ध्यान में रखिएगा। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की बारगाह में जब हजरत औरंगजेब का उन्वान आपने सुना होगा, औरंगजेब जल्लाद नहीं था, ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब जालिम नहीं था, औरंगजेब प्रैक्टिकल हजरत उमर इब्न खत्ताब के परतव का एक अवली कामिल था। और जिसे ना मानना है ना माने, भाई मेरे बाप को अगर कोई नहीं मानता है तो हमको क्या है, हम अपने बाप को मानते हैं बस। सही है कि नहीं? कोई माने या ना माने, तो दुनिया जो कह रही है कहे जा करके। हम आवे जमजम पीने वाली कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत अकीदा है। तो हजरत औरंगजेब प्रैक्टिकल वली थे, वो करामत दिखाने वाले नहीं, वलियों की करामत को देखने का अकीदा रखते थे। और आप बंदा नवाज की बारगाहों का भी वही उन्वान आप देखेंगे कि जब वो आए थे तो सलाम का जवाब जब तक नहीं मिला उस वक्त तक वलायत का इकरार नहीं किए। तहकीक करें आप। चुनांचे जब आवाज आई तो उस वक्त इतने बड़े आलिम है वो कि अरबी के बाद जिस लैंग्वेज का दर्जा हासिल है उस लैंग्वेज को कहते हैं पर्शियन, फारसी। फारसी में उन्होंने एक शेर कहा, उसी शेर से आप समझिए कि औरंगाबाद हो या औरंगजेब की तरफ निस्बत करने वाली रोड हो, ये कोई जालिम की तरफ निस्बत नहीं है, एक आलिम की तरफ निस्बत है, एक अल्लाह के वली की तरफ निस्बत है। जिनको मानना है ना माने, जिनको मानना है माने। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं बंदा नवाज की बारगाह से जब सलाम का जवाब आया तो निस्त काबा दर दकन जुज दर गए गेसू दराज बादशाह दीन दुनिया हजरत बंदा नवाज। पर्शियन इसका माना यह है कि अगर ए हिंदुस्तानियों काबा को ढूंढना चाहते हो तो हजरत बंदा नवाज के पास आ जाओ। निस्त काबा दर दकन, दकन में कहीं भी तुम्हें अपना किबला नहीं मिलेगा, अगर किबला तलाशना हो तो बंदा नवाज की बारगाह में आ जाओ। ये बहुत बड़ी हुलू नहीं है, बहुत बड़े आलिम। जब पूरी दुनिया के आलिम को जो जमा करके अगर किसी ने एक किताब दिया है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम की शक्ल में, जिसको मुल्की सतह पर, हुकूमती सतह पर आलमगीरी का फतावा, फतावा आलमगीरी कहते हैं, इस फतवे को हुकूमत भी तस्लीम करती। फतावा आलमगीरी, ये किसकी तरफ निस्बत है? ये हजरत औरंगजेब आलमगीर की तरफ निस्बत है। आप समझ रहे हैं? इसलिए आप लोग कभी मिसलीड ना होना कि औरंगजेब के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, उनको ये तोड़ देंगे, वो तो जो करना है करो। हमने यजीद को झेला है यार,
झेला है, लेकिन हुसैन ही हमारे दिल में है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पाया नहीं है यजीद को, झेला है, पाया तो हुसैन को है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अल्लाह के वलियों के हवाले से बदगुमान न होना, जिसमें इत्तेहाद और इसमें यूनिटी रखना। आप नौजवानों, खास तौर से तुम कौम के पिलर की हैसियत रखते हो, इन बुजुर्गों से हमें कोई खतरा नहीं। तुम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, ये साफ कहूंगा, वेस्ट करते हो। देखना चाहते हो जुम्मन को, आ जाता है जुमराती, और देखने में जब मगन हो गए तो बस देखते ही चले गए, ना टाइम का ख्याल, ना खाने का ख्याल, ना पीने का ख्याल, ना सेहत का ख्याल, कुछ नहीं। जिसका फोन आ रहा है, इंपोर्टेंट कॉल भी आ रहा है, और सबसे इंपोर्टेंट कॉल, आजान हो रही है, वॉल्यूम कम करके देख रहे हैं। तौबा तौबा, अमल का दारोमदार नियतों पर है। अगर तुमने अजान का जवाब न दिया तो खात्मा बिस्सू होने का इम्कान है। वो खात्मा बिस्सू का मतलब समझते हो, यानी ईमान पर ना मरे सर का हो सकता। इसलिए अजान जब हो ना, सब कुछ छोड़ देना। और अजान का जवाब, जहां नमाज पढ़ते हो वहां हर अजान का जवाब फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन जहां आप नमाज पढ़ते हो एक अजान का जवाब आप जरूर दें, और हर तरह से अच्छे से पूरी पॉजिटिविटी के साथ जवाब दें। अगर गफलत बरती तो समझ जाओ दिल टेढ़ा कर देगा अल्लाह ताला। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बंदा नवाज को इजी मत लेना, और जो जा रहे हो मेरा भी उन्हें सलाम पेश करना। वैसे वो यहाँ सुनते हैं, दूर नजदीक का तफावत नहीं, ईमान का लेवल उनकी बारगाहों तक पहुंचता है। वो सुनते हैं। कुरान पाक ने बल अहयाउन का अकीदा दिया है कि अल्लाह की राह में जो शहीद किए जाते हैं वो जिंदा है। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह के अलावा कुछ ऐसे बंदे हैं जो इंतकाल के बाद भी जिंदा हैं, जिंदा हैं। अब शहादत की किस्में हैं, बहुत सारी किस्में, हकीकी शहादत, जंग के मैदान की शहादत, मोमलेंजिंग की शहादत, दीगर चीजों की शहादत। उन्हीं शहादत में से एक शहादत है मोहब्बत रसूल की शहादत, फनाफिर रसूल की शहादत। और हर वली फनाफिर रसूल के दर्जे पर फाइज होकर ही वली होता है। इसलिए वली जो है अल्लाह ने अपनी शान भी रखी है, रसूल की शान भी रखी है, और उम्मत के औलिया की भी शान रखी है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 55 में खुद फरमाता अल्लाह, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। वली अल्लाह भी है, वली रसूलुल्लाह भी है, और वली बंदा नवाज भी है, जैसो दराज भी है। देकर तमाम उम्मत के वो लोग जो नबी नहीं हो वो भी है औलिया अल्लाह। ये वली की का प्लूरल है। तो वली का बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। मुतलकन वली के हवाले से निगेटिव ना होना, निगेटिव तो होना ही नहीं किसी भी तरह से, क्योंकि लफ्ज वली ये खुदा की भी शान है और नबी की भी शान है। अभी मैंने सूरतुल माइदा की आयत पेश की, चुनांचे उसके आगे की जो बड़ी डेंजर आयत है, डेंजर से मतलब एक वईद वाली आयत, मैं यतवल्लल्लाह व रसूलहु फउलाइका हुमुल गालिबून। तुम गलबा चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, अपोजिशन पर फतह चाहते हो, तो अल्लाह उसके रसूल को वली मान लो। वलायत का अकीदा रखो, वली होने का अकीदा रखो, वली है, ये तौहीदी अकीदा है। तो अल्लाह फरमाता जो ये अकीदा रखते हैं कि वली है, औलिया अल्लाह है, तो औलिया अल्लाह का अकीदा रखने वाले ही गालिब होंगे। सुभान अल्लाह, कुरान ने ये अकीदा दे दिया है। इसलिए आइंदा जुमरात को खाली ऐसा ना हो कि खाली मीठा फातिहा दिला दिए बंदा नवाज खुश हो जाए, ऐसा नहीं है। बंदा नवाज की हिस्ट्री पढ़िए, उनकी किताबें हैं, वो मुसन्निफ आलिम दीन। ऐसे ही मैंने नहीं कहा ना कि हर वली पीर है, लेकिन हर पीर वली है जरूरी नहीं है, वली है जरूरी नहीं है। साफ बात है कि वली के लिए पीर होना जरूरी है। आलिम, बड़े आलिम, उनकी अरबी में किताबें हैं, हालत खराब हो जाती। वो रिसर्च होता, डॉक्टरियत मिल रही है, उन पर रिसर्च किए हुए। तो ऐसा नहीं हो कि खाली जुमरात को आप फातिहा कर दें, करें, इसका इनकार नहीं है अपने लेवल और स्टेटस के हिसाब, लेकिन पढ़िए। हर किताब उनकी अंग्रेजी, उर्दू, हर जबान में आ चुकी है, मैंने देखे हैं। कोई ना कोई किताब लेकर पढ़िए, उनकी हिस्ट्री पढ़िए। और नहीं पढ़ेंगे ना तो मैं बाद में बाखबर कर रहा हूं आपको कि आज उनकी किताबों पर एडिटिंग हो रही है। किताब एक जवामिउल कलिम, बड़ी खूबसूरत किताब है, उसमें एडिटिंग हो रही। यहां तक के उस किताब में एडिटिंग ऐसी हो गई कि शिया बनाने की बात चल गई कि वो शिया अकीदा रखते थे। बताइए,
अल्लाह का वली, तौबा तौबा तौबा, इस तरह की बातें। ये क्यों आप हो जाएंगे मुस्लिम? इसलिए कि आप पढ़े नहीं, और पढ़ लेंगे ना आप, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग पुरानी नई हर किताब अपने पास रखते, हर किताब रखते। आंख बंद कर कहो, हो ही नहीं सकता, अल्लाह का वली कोई बदअकीदा नहीं हो सकता। इसीलिए हाफिज इब्न कसीर ने किताब लिखा, औलियाउर रहमान औलियाउश शैतान। हाँ, अल फुरकान बैन औलियाए रहमान व बैन औलियाए शैतान। बात बड़ी अच्छी अच्छी लिखी है उसमें। इसका मतलब ये कि शैतान का भी वली होता है, रहमान का भी वली होता है। बंदा नवाज रहमान के वली है, और रहमान का वली बदअकीदा नहीं हो सकता। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। अल्लाह ताला उनके फैज़ व बरकत से पूरे दक्कन के मुसलमानों को बिलखुसूस फैज़ व बरकत से माला माल फरमाए। नौजवान गुस्से में मत सुनना, सुनोगे तो याद रखो, अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे दुश्मनी मोल लोगे तो मैं बर्बाद कर दूंगा। नहीं, मेरे किसी वली से दुश्मनी मोल लोगे तो बर्बाद कर दूंगा। इसलिए कॉमन लफ्ज है बुखारी शरीफ में, मन आदाली वलियन, जिसने किसी भी वली से, इस लफ्ज किसी को समझ रहे हैं आप? जैसे आप कभी कभी गुफ्तगू में कहते हैं अरे किसी को भी देते, किसी का मतलब होता है कि इजी उन्वान है, खास के लिए नाम लिया जाता है उनका, ये इनके वास्ते है। और अगर कहें कौन तो भी बैठ सकते, तो इसका मतलब कॉमन हो गया ना, किसी के लिए भी आम है, तो किसी का लफ्ज काम होता है, इसको अरबी में नकेरा बोलते। अल्लाह पाक ने अपने वली के नकरा होने कॉमन में फरमाया, मन आदाली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी मोल ली, निगेटिविटी लाया, मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। अल्लाह से लड़ते जीत पाओगे? इब्लीस तो भाग गया, लड़ने ही को तो मैं बेहतर हूं। अच्छा, मैं कर रहा, चल निकल, और खाली इतना बोल दिया चल निकल, तो ऐसा नहीं कि जाकर के तलवार और मबलिंची का ये नहीं, हाँ अच्छा निकाल दिया ना, तुझे तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे बंदों को जरूर करूंगा। देखिए ये कहा, कहना यह है अल्लाह से जब इब्लीस न लड़ सका, तो एक वली से दुश्मनी रखने वालों तुम्हारी क्या हैसियत है? खबरदार खबरदार, किसी वली से, किसी भी वली से दुश्मनी न। आजकल बड़ी ये बात भी ट्रेंड हो रही है, बहुत चल रही है कि अरे दरगाह तोड़ी जा रही है, उनमें करामत है, ताकत है, तो कई को नहीं उन्होंने बुलडोजर को रोक दे रहे हैं। ऐसे आए मसले हमारे पास। मैंने यही कहा, या अल्लाह, तुम करामत देखोगे तभी मानोगे। ये तौहीदी नुक्ता नजर नहीं, क्योंकि मोजज़ात देखकर जब नहीं माना अबू जहल, मैं कैसे मान लूं कि तुम करामत देखकर मान लोगे खुदा रसूल को? यार नहीं, पहले तो ये पैमाने तौहीद ही नहीं है, क्योंकि वली की जो करामत है ये उनके पांव का धूल है, ये पांव का धूल है। वली की करामत तकवा है, वली की करामत बुजुर्गी है, वली की करामत तवज्जो इल्लाह है, वली की करामत मंशा इलाही पर जीना है। अल्लाह के मंशा के तहत ही वो कुछ करेंगे। और अगर तुम कहते हो कि अल्लाह के वली करामत क्यों नहीं दिखा रहे, बुलडोजर चल रहा है, तो सवाल यह है कि जब वली मान रहे हो, करामत न होने की बुनियाद पर एतराज है, तो सवाल है ए अल्लाह, तू क्यों नहीं बुलडोज को रोक रहा है? तू क्यों आस्ताने को बुलडोज होने से रोक नहीं रहा है? वो क्यों तोड़वा रहा है? अच्छा, आस्ताने भी टूट रहे, मस्जिद भी तो टूट रहे ना, कैसी दुश्मनी है यार। बंद करो ये सारी चीजें, तुम्हारी ही इन्हीं हरकतों की वजह से आज इन जालिमों को मौके मिले हैं। हम ना आस्ताने को तोड़ने देना चाहते हैं, ना मस्जिद को, क्योंकि पूरी रूए जमीन अल्लाह पाक की मिल्कियत है, चाहे कोई भी हैसियत हो। मत करो ऐसा, हंस रहे हैं लोग, आस्ताने टूट रहे हैं तो मसले पूछ रहे हैं, अच्छा ना है, ला हौला वला कुव्वत। जब तुम्हारा घर टूटेगा, शीशे के में घर बैठ करके दूसरे के इसको देख रहे हो आप कि पत्थर मारे जा रहे हैं, शीशे के घर में तुम भी हो। जब तुम्हारे ऊपर होगा तब समझोगे तुम। आज मुल्क की सतह पर भी उम्मते मुस्लिमा को एक होना लाजिम है, और ये मैं नहीं, ये सदाए तौहीद है। मुल्क की सतह पर भी एक नहीं होगे तो याद रखना, फिरका परस्त ताकतें तुम्हारी
टोपी और दाढ़ी की हैसियत को नहीं, तुम्हारे को अब्दुल्ला होना काफी है उसके लिए। तुम्हारा नाम जो अब्दुल्ला है, बस तुम्हारा नाम जो अब्दुल रहमान है, बस इस्लामी नाम है तुम्हारा, इतना ही काफी है मॉब लिंचिंग के लिए। क्या है कि नहीं? ये बात सही है। अब भी तुम एक नहीं हो गए यार। हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि अगर बाहर किसी औरत का दुपट्टा मुसलमान खींच रहा हो और वो औरत अगर हिंदू है तो हम मुसलमान को मारेंगे। ए मुसलमान मत कर, क्योंकि वो भी आदम की औलाद है। हमारा खूबसूरत इस्लाम तो ये है। और तुम कलमा पढ़कर एक दूसरे के रसाकशी में हो, कलमा पढ़कर एक दूसरे के खिलाफ हो। अल्लाह रसूल का नाम लेकर, कलमा पढ़कर, नमाज पढ़ के, हज और ज़कात पढ़ करके तुम खुश हो रहे हो कि हां आस्ताने वाले पर जुल्म हो रहा अच्छा है, मस्जिद वाले पर जुल्म हो रहा अच्छा है। तो मौके तो उनको मिल रहे हैं ना। देखिए ना, दिखा रहे हैं ना तस्वीर के साथ, ये यूनिटी हमारे साथ है, इतने लोग हमारे साथ है। लेकिन उसे ये नहीं दिखा होगा परसों का रात का अंधेरा नहीं दिखा होगा। अंधेरा तो पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। लेकिन सुनो, शद्दाद ने जन्नत बनाई थी, जन्नत बनाई थी, और ऐशो आराम की हर वो चीज थी कि वो चैलेंज करता था कि तेरी जन्नत से तो मेरी जन्नत अच्छी है, तेरी जन्नत तो एक मौहूम है, एक ख्याली है। इस तरह से बोलता था। अल्लाह पाक को कितनी नाराजगी हुई। बनने तो दिया, बनने तो दिया। और जब पूरी शान शौकत के साथ वो ऐशो आराम के लिए जाना चाह रहा था, कदम ही रखना चाह रहा था कि अपनी जन्नत के दरवाजे ही पर मर गया। जन्नत के दरवाजे पर पांव नहीं रख सका। यह है खुदा वहदहू ला शरीक की कुदरत। तुम हमारी जमीन लेकर कुछ बना भी लोगे तो उसके अमीन हम ही हैं। हम न सही, हमारी नस्ल जरूर अल्लाह पाक की तरफ से वो पाएगी। ये अल्लाह पाक का वादा है। अरे तुम क्या समझते हो? खुदा वहदहू ला शरीक एक अल्लाह का मानने वाला उम्मती फिक्री और नजरियाती तौर पर अभी बटा हुआ, लेकिन उलमा की हिदायत की बुनियाद पर सब मुत्तहिद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, सियासत के नुक्ते नजर से नहीं, तौहीद के नुक्ते नजर से एक हो जाओ। तौहीद के नुक्ते नजर से एक हो जाओ। मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखो और एक हो जाओ। सहाबा किराम का चेहरा देखो और एक हो जाओ। अहले बैत अतहार का चेहरा देखो और एक हो जाओ। तमाम बुजुर्गान दीन का चेहरा देखो और एक हो जाओ। मुल्की सतह पर एक हो जाओगे। तो मिसाल जानते हो, हम लोग बच्चों को पढ़ने में देते हैं, एक झाड़ू होती है ना, झाड़ू, ये कीली वाली झाड़ू, उसको नारियल की झाड़ू बोलते हैं। उस झाड़ू की एक मिसाल देते हैं कि अगर वो झाड़ू की एक एक काड़ी को अलग कर दो तो उससे वो चोट नहीं लगेगी आपको, कि अगर पूरे को बांध करके अगर किसी को देखो तो मारो, कितनी चोट लगेगी ना ज्यादा, अगर पूरे को बांध दिए। मुतवातिर, वहदत, जमइयत, इत्तिहाद, यूनिटी की यही मिसाल है। अलग अलग हो जाओगे तो बिखर जाओगे, कोई भी तोड़ देगा, मसल देगा। और अगर एक हो जाओगे तो सोचना पड़ेगा, हजारों बार सोचना पड़ेगा। अभी देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर यही हाल हर पांचों वक्त में हो जाए, खुदा की कसम भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा किसी को। क्योंकि जमात का कॉन्सेप्ट यही था, जमात, इज्तिमाइयत, इत्तिहाद, यूनिटी, ये है असल मकसद। क्या बात है, अरफात में अल्लाह सबको एक ही वक्त क्यों जमा कर रहा है? क्या बात है, मैदाने मुज़दलिफा हो, ये सबको एक ही वक्त, तवाफ में एक ही वक्त क्यों जमा कर रहा है? ये हमारी यूनिटी का पैगाम है अल्लाह पाक की तरफ से। इसलिए मुसलमानों, अगर वाकई अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ते हो, खैर उम्मत के एहसास में जीते हो, तो उसी मुस्तफा के नाम पर एक हो जाओ, एक हो जाओ। क्योंकि दुनिया तलबी वालों के लिए मैंने कहा था सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 18 के तहत कि दुनिया चाहिए तो सिर्फ दुनिया देगा अल्लाह, और मुस्तफा चाहिए तो दुनिया भी देगा और आखिरत भी देगा अल्लाह ताला। और बताओ कौन है ऐसा जिसे मुस्तफा नहीं चाहिए? कौन है? हर फिरके वाले को मैं कह रहा हूं एक जुमला है, तुम्हारा कलमा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है? कलमा नहीं, तुम्हारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम्हारा भी कलमा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
फिर क्यों निगेटिविटी है? फिर क्यों तौहीद और रिसालत में डिवीजन का एक तसव्वुर रखते हो? अगर तुम्हें फिक्री और नजरियात को देखने हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। कम से कम फिरका परस्त ताकतों के खात्मा तक के लिए तो भूल जाओ। एक दूसरे की खबरगिरी करो यार, एक दूसरे की खैर पूछो, खबर पूछो, खैरियत पूछो, एक हो जाओ। और ये सोशल मीडिया पर जो ये ट्रेन पे ट्रेन चलाया जा रहा है ना, मैं उन तमाम से को बाखबर भी करता हूं, अपना लेवल समझो। LKG के हो तो 10th वालों से मुकाबला मत करो, डॉक्टर से मुकाबला मत करो, अपना दायरा समझो। हर इल्म जो तुम्हारे पास आया है, अगर वो उस्ताद के जरिए से आया है तब वो इल्म है, और सोशल मीडिया के जरिए से आया तो वो इल्म नहीं है, क्योंकि ये झूठ भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। हर खबर सच्ची नहीं होती। खबर की तारीफ ही यही है जिसमें झूठ और सच दोनों का एहतिमाल, झूठ और सच दोनों की बात, दोनों पहलू हो। इसीलिए तो देखिए, एक दिन खबर में छपा, वो उन्होंने ऐसा कहा, वहां हमला हो गया, और जब सच्चाई मालूम हुई तो दूसरे दिन माजरत चाहते हैं, कल की खबर गलत थी। जो गलत है, मगर मुस्तफा जो कहे वो सच्ची ही है। सुभान अल्लाह। कुरान सच्चा है, सहाबा सच्चे हैं, अहले बैत सच्चे हैं, नबी सच्चे हैं। तो जब सच्चे की बुनियाद पर तुम्हें दावत इत्तेहाद दी जा रही है, क्यों नहीं एक हो रहे हो? बताओ। मीडिया की बुनियाद पर एक हो रहे हो, जबकि मीडिया में झूठ भी है। सोशल मीडिया, गूगल और यूट्यूब की बुनियाद पर तुम मिसलीड हो रहे हो। नहीं, नबी के नाम पर एक हो जाओ, कुरान के नाम पर एक हो जाओ। ये सब सच्चे। मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह के कलाम से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। रसूल पाक सादिकुल वादिल अमीन है, शरीयत मोहम्मदी सच्ची है, सहाबा अहले बैत हक और सच है। इस बुनियाद पर एक हो जाओ। मुझसे अगर तुम्हें इख्तिलाफ है अकायद की बुनियाद पर, नजरियात की बुनियाद पर, थोड़ी देर के लिए वहीं पर रहने दो। अभी जैसे अभी देखिए, अभी जुमा की नमाज की बात है ना, अभी नियत क्या करोगे आप? जुमा की नमाज की नियत करोगे ना। ये तो नहीं है ए अल्लाह मैं जुमा के बाद असर की नियत करूंगा, ऐसा बोलते आप। अभी असर का ख्याल तक नहीं आपके पास है, हालांकि आपकी जिम्मेदारी है, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन जब नीड ऑफ द आवर, वक्त की जो जरूरत होती है ना, पहले उसको पूरा किया जाता है। आज कुरान और खुदा रसूल शरीयत कह रही है, ए मुसलमान वक्त की जरूरत है, एक हो जाओ, एक हो जाओ। अगर इख्तिलाफ करोगे, मांगोगे भी मदद तो नहीं आएंगे, मोबाइल तो लेंगे, वीडियो तो बनाएंगे सोशल मीडिया पर, और आखिर में कहेंगे लाइक करो, शेयर करो। ये तो किया जाएगा तुम्हारी मॉडलिंग चिन्ह में। लेकिन सुनो, अगर मुत्तहिद होगे, सीने पे सीना मिलाए रहोगे, तुम्हारे काले गोरे को नहीं देखा जाएगा, सब कुछ छोड़कर तुम्हें बचाने की फिक्र की जाएगी, तुम्हें पहले बचाने की फिक्र की जाएगी। आज देखिए, जहां कहीं भी किसी को भी मारा जा रहा है, गाड़ी चला रहे हैं, लोग देख रहे हैं, खड़े होकर देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब है। बताइए, एक शख्स है, एक को मार रहा है, हजारों शख्स देख रहे हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है कि उस एक से उस एक को बचाया जाए। क्यों? मोहब्बत नहीं है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। लाइक और शेयर मांग रहे हो, सोचो अगर तुम उसकी जगह पे रहते तो यही होता ना। तो क्या इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारी भी बारी आए? ऐसा मत करो। आज तौहीद की सदा है, वाकयातन एक हो जाओ, अल्लाह के नाम पर, रसूल के नाम पर, शरीयत के नाम पर एक हो जाओ। अगर तुम्हें नजरियाती इख्तिलाफात है तो ये ऐसे ही अभी भूल जाओ जैसे असर को भूले हो। हम इसलिए कह रहे हैं भूलने के लिए क्योंकि अभी जरूरत है जुमा की। अभी जुमा है आपके सामने तो पहले जुमा अदा करो। ऐसे ही अभी इत्तेहाद है आपके सामने तो अभी इख्तिलाफ छोड़ दो। जब तुम खूब अच्छे से पॉजिटिव हो जाओगे, सब हरा भरा माहौल हो जाएगा, फिर पूछना ना नजरियात क्या है, मसाइल क्या है, मसालिक क्या है, फिर यहां बांधना, पांव हिलाना, इधर करना, उधर करना, जो भी करना है करो ना। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए नहीं सही, कम से कम इस जालिम, क्या तुम नहीं चाहते हो कि जालिम हुकूमत खत्म हो? कौन नहीं चाह रहा बताइए तो? वो नहीं चाह रहा है जिसके अकाउंट में ऑटोमेटिक, अब फोन पे गूगल पे नहीं बोलूंगा, ऑटोमेटिक पे हो रहा है, वो नहीं चाह रहा होगा। लेकिन याद रखिएगा, जब हिसाब लिया जाएगा ना तो न वो बचेगा न उनकी नस्ल बचेगी, बचेगा जो सच का साथ दिया हो,
سچ کی ذات بھی بچتی ہے، سچ کی نسل بھی بچتی ہے. اسی لیے آج صدیاں گزر گئی ہے حسین کے لیے، لیکن آج وہ بھی ہے ہمارے سینے میں، ان کی نسل بھی موجود ہے الحمدللہ. وہ شہید ہو کر، مجھ زبان میں بولو، وہ انتقال کر کے زندہ ہے، اور یزید زندہ رہ کر مردہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اس لیے اگر زندگی چاہتے ہو خود کی بھی نسلوں کی بھی، تو سچ کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، اور وہ سچ ہے محمد الرسول اللہ، وہ سچ ہے قرآن، وہ سچ ہے صحابہ اور اہل بیت. اس بنیاد پر ایک ہو جاؤ. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، نبی کے نام پر، آل نبی کے نام پر ایک کرے، پازیٹو رہیں، محبت سے رہیں. مولا آپ سب کو خوشحال زندگی نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت